They have announced 3 days peaceful strike. Basically, there is a reason behind this. We have some demands that should be taken into consideration. We have been fighting for last 10 or 15 years. Some are working for 15 years, 10 years. We have some demands, for example, our salary that should be given as per UGC norms. And you are talking about one nation, one constitution, but that is not followed, that is not implemented. So far as salary is concerned, we are getting only 28,000 per month. But if we will calculate the average, this is not 28,000. This is only 13,000 or 14,000, because we are not getting academic arrangement for 12 months. This is just for 7 months, sometimes 8 months, 9 months, and some average is only 8 or 9 months. So it becomes only 13 or for 14,000 per month. We demand salary as per UGC normal. Those candidates, contractual assistant professors who are working in Ladakh, they are getting salary as per UGC norm 57,700. And you are talking about one nation, one constitution. The ruling of Supreme Court should be implemented. Equal pay for equal work, and we also deserve that. Number second is about the nomenclature. We are being treated as academic, need basic academic arrangement, although we have good qualification, PhD, postdoc, etc. We are having higher qualification. So this should be changed to assistant professor, contractual assistant professor. And I will tell you, this is very interesting. Some candidates who come from far-flung areas, they live here on rented rooms. And if we will see the expensiveness, this present age is the age of expensiveness. The 13,000 or 14,000 per month, that is not sufficient. So these things should be taken into consideration. And continuation as per health and medical education, SO 364. And someone has rightly said, if there will be collapse of education system, that will lead to collapse of whole nation. So we want to share with you that our voice should be heard. Thank you. A 3 days peaceful pen down strike, then it would be then followed by indefinite strike. हम डिग्री कॉलेजेस में के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे पास नेट, सेट, पीएचडी, जेआरएफ, पोस्ट डॉग और गोल्ड मेडलिस्ट भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो जब हम सारे के सारे क्राइटेरिया जब फुलफिल करने के बाद हम कॉलेज के अंदर काम करते हैं। अब जो लोग कॉलेज के अंदर काम करते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। अब दो कैटेगरीज है उसमें, एक है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा वो है जो कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली जो डिमांड है वो है कॉलेज कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से हमें पुकारा जाए। उसका एक रीजन है, जब हम आउटसाइड यूनिवर्सिटीज, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आपने किसी हायर सेकेंडरी में काम किया है। कभी एडहॉक का नाम दिया जाता है, कभी कंट्रैक्चुअल का नाम दिया जाता है, कभी नीड बेस्ड का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली जो डिमांड है दैट इज शुड बी नोमेनक्लेचर कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि हम सारे के सारे क्राइटेरिया जो है उनको फुलफिल करने के बाद कॉलेज के अंदर आते हैं। जो दूसरी डिमांड हमारी है वो डिमांड है सैलरी हाइक एज पर यूजीसी नॉर्म्स। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एडवर्टाइजमेंट नोटिस पब्लिश होती है, उस एडवर्टाइजमेंट नोटिस के अंदर यूजीसी के क्राइटेरियाज फुलफिल किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के बाद जब सैलरी की बारी आती है तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ 28,000 ऑन पेपर्स दिए जाते हैं। अब 28,000 पेपर्स का बोलते हैं, लेकिन उसमें एक्सक्लूड करते हैं, ना विंटर की सैलरी 45 डेज देते हैं, ना ही समर की सैलरी 10 डेज देते हैं। और ओवरऑल जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो काम हम कॉलेज के अंदर करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए हायर किया जाता है। तो उसके ओवर एज अगर हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमारी जो सैलरी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैलरी बन जाती है। अब 12,000 की सैलरी जब बन, थर्ड पॉइंट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये पॉइंट है कि हमारे कुछ लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स सर्विस देने के बाद ओवर एज हो चुके हैं, और थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आपको मालूम होगा रिसेंटली कुछ हमारे जो कलीग्स है, पीएचडी, नेट, सेट, जेआरएफ करने के बाद एमफिल भी उनके पास था, पब्लिकेशंस थी उनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएचडी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले जो है वो ड्राई फ्रूट बेचने पे मजबूर हो गए हैं। वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हो, जब एक सोसाइटी का एक उस्ताद एक चाहते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो वन टाइम आप कंटिन्यूशन करने के बाद हमें SO 364-202 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंदर लाया जाए। और आपको सब मालूम, ये भी मालूम होगा कि 2019 5 अगस्त 2019 2 यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लद्दाख में जो लोग हैं, हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, वो 57,700 ले रहे हैं, और वही
वही सेम काम 4 क्लासेस 5 क्लासेस हम देने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 14,000 सैलरी लेते हैं। तो मुद्दमाना गुजारिश है कि जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, इन जेन्युइन डिमांड्स को सुना जाए, और हमें उम्मीद भी है कि इन कपल ऑफ डेज हमें ये डिमांड्स फुलफिल होगी। अगर नहीं होगी तो जो हेक्टा जेके हेक्टा है, उन्होंने फिलहाल फर्स्ट फेज में 3 दिन की स्ट्राइक कॉल दिया है, उसके बाद ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा 15 डेज की, और उसके बाद अगर भी नहीं हुआ, हमारी इस डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, तो हम हंगर स्ट्राइक के लिए जाने के लिए तैयार है। जिस टाइम गवर्नमेंट बनी है, इस वक्त आपको मालूम होगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही है, एक एलजी साहब की गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी सीएम साहब की गवर्नमेंट। हमें उम्मीद है, हम तब भी उम्मीदवार थे, आज भी उम्मीद है हमें कि हमारी जो डिमांड्स है एलजी साहब भी सुनेंगे इंशाल्लाह, और उसको फुलफिल भी करेंगे। और वर्ती सीएम साहब और हायर एजुकेशन की जो मिनिस्टर साहिबा है, हमें उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करेगी। और जेन्युइन डिमांड्स है, ऐसी कोई डिमांड है नहीं जो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन डिमांड्स है नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, एक रिटन डॉक्यूमेंट निकाल के जेन्युइन नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, कंटिन्यूएशन का ऑर्डर निकालना है, उसमें कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है जेन्युइन डिमांड है, आपके पास फंड्स है अवेलेबल, आपके पास यूजीसी फंड्स है, कॉलेज के फंड्स जो कलेक्ट होते हैं, तो आप आराम से हमें 57,700 दे सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।